حضرت انسان نے غار سے تہذیب تک کا سفر پا پیادہ طے کیا. بعد کے ادوار میں پگڈنڈیاں شاہراہوں میں بدلیں تو سفر کے لیے مضبوط کاٹھی اور توانا ٹانگوں والے جانوروں کی مدد دی گئی. بادبانی کشتیوں سے سمندروں کی طویل مسافتوں کو ناپا، ایجادات کے گھوڑے دوڑائے، فضا میں غوطے لگائے اور خلاؤں کی بلندیوں کو چھوا. لیکن سپر سونک کے اس دور میں بھی 198 سال قبل شروع ہونے والی ریل ٹرانسپورٹیشن کی حیثیت سب سے ممتاز ہے. ریل جہاں ایک جہان کا جذباتی اظہار ہے، وہیں شہروں سے ملکوں اور ملکوں سے برے اعظموں تک ہر روز بلینز ٹن سامان کی نقل و حرکت کا سستا اور محفوظ ترین نیٹ ورک بھی. پروقار اور ماحول دوست ریل ترقی یافتہ سے ترقی پذیر ممالک تک یکساں مقبول. منظم اور وسیع کاروبار، تیز رفتاری اور جدت کا شاہکار، مگر پاکستان میں زبوں حالی کا شکار. بدحالی اور ابتری سے عبارت، خسارے میں ڈوبا اور قومی خزانے پر بوجھ سمجھا جانے والا ایک سفید ہاتھی کہ جس سے عوام بھی نالا اور حکمران بھی پریشان. ایسا کیوں؟ میں ہوں عائشہ ذوالفقار اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ایسا کیوں. ناظرین، ہمارا آج کا موضوع ہے پاکستان ریلوے، کمال سے زوال تک کی داستان. سوال یہ ہے کہ دنیا بھر میں منافع بخش محکمہ پاکستان میں خسارے کا شکار کیوں ہے؟ اسی پر بات کریں گے، لیکن پہلے آپ کو یہ رپورٹ دکھاتے ہیں. پاکستان ریلوے 80 کی دہائی سے مملکت کا سفید ہاتھی جو قومی خزانے سے ہر سال اربوں روپے ڈکار جاتا ہے. 75 سالوں کے دوران 8561 کلومیٹر ریل کی پٹری، 7791 کلومیٹر اور 1700 کے قریب کوچز کم ہو کر 1400 رہ گئیں، جبکہ 204 ٹرینیں 101 اور مسافر 6 کروڑ سالانہ تک سمٹ گئے اور خسارہ بڑھ کر 45 ارب روپے کی حد پار کر گیا. پاکستان ریلوے میں انحطاط کی تصویر پیش کرتے ان اشاریوں کا سبب کیا ہے؟ ماہرین نوکر شاہی کے 50 سالہ پرانے انتظامی طریقے کو ریلوے کی ناکامی کی وجہ قرار دیتے ہیں. 2018 میں ریلوے کا عملہ 72,000 ملازمین اور 1300 افسران پر مشتمل تھا. اس سال 6 کروڑ لوگوں نے ریل کو ذریعہ سفر بنایا، یعنی 3200 مسافروں پر ایک ریلوے ملازم. بھارت میں یہ شرح پاکستان سے 7 گنا زیادہ ہے. ریلوے خسارے کی ایک بڑی وجہ 67,000 ملازمین کی تنخواہوں اور 1.25 لاکھ کے قریب پینشنر پر اٹھنے والے 67% کے اخراجات ہیں. آمدرفت میں تاخیر، سہولیات کی کمی اور صفائی ستھرائی کا ناقص انتظام بھی ریل کو عوام میں غیر مقبول بنانے کا باعث بنا. سگنلز کا پرانا اور فرسودہ نظام جہاں ریلوے کے نظام الاوقات کو متاثر کرتا ہے، وہیں 3 ارب روپے سالانہ خسارے کا بھی سبب بنتا ہے. ٹرین کے سفر کی عوام میں غیر مقبولیت کی ایک وجہ ریل حادثات کی بڑھتی شرح بھی ہے. گزشتہ 2 دہائیوں کے دوران ملک میں 40 کے قریب جان لیوا ٹرین حادثات پیش آئے، جن میں 600 سے زیادہ افراد لقمہ جل بنے. ملک میں فری ٹرینوں کا شکستہ نظام بھی ریلوے کی ناکامی کا نوحہ ہے. دنیا بھر میں سالانہ 10,000 ارب ٹن سامان کی ترسیل ٹرین کے ذریعے ہوتی ہے. عالمی بار برداری کی بذریعہ ٹرین منتقلی میں آدھا حصہ پہلی 2 بڑی معیشتوں امریکہ اور چین کا ہے، جبکہ پاکستان میں صرف 2% سامان 16 مال گاڑیوں کے ذریعے منتقل کیا جاتا ہے. متحرک فریٹ ٹرین سسٹم بڑے ٹیکس ریونیو کا ذریعہ ہونے کے ساتھ ساتھ ملک میں روڈ انفراسٹرکچر کو بھی اوور لوڈنگ کے دباؤ سے نجات دلا سکتا ہے. دنیا بھر میں 24 ارب سے زائد مسافر 1 ملین کلومیٹر پر پھیلے ریل نیٹ ورک بزنس کا تخمینہ رواں سال 6.6% نمو کے ساتھ 538 ارب ڈالر لگایا جا رہا ہے، جس کا بڑا حصہ فریٹ ٹرینوں سے حاصل ہونے والی آمدنی کا ہوگا. تیز رفتار، محفوظ اور ماحول دوست ٹرین سروسز کے عالمی حجم میں 2050 تک مزید 50% اضافے کا امکان ہے. ناظرین، پاکستان ریلوے کا عالمی ریل سروسز سے موازنہ آپ نے ملاحظہ کیا. ریل ملک کی بڑی آبادی کے لیے سفر کی ترجیح نہیں رہی. 1960 میں اندرون ملک 41% مسافر ریل کے ذریعے سفر کرتے تھے. آج یہ تعداد گھٹ کر صرف 5% رہ گئی ہے. ایسا کیوں؟ یہی جاننے کے لیے ہم نے بات کی ہے مسافروں سے. پہلے وہ آپ کو سنواتے ہیں. کیا سہولت کیا ہے بیٹے، بتاؤ نا. کوئی اندر کوئی کھانا
दे देते हैं फ्री में, या कोई चीज़ बता दें, वो अंदर बेच रहे होते हैं चीज़ें, इतना लूट रहे होते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। पीने की पानी है ही नहीं है उसमें, और वाशरूम में बंदा, मैं क्या कहूँ, इतना गंदे वाशरूम है कि बंदा सोच भी नहीं सकता। माशाल्लाह हुकूमतें चेंज होती रहती हैं, वो अपने हिसाब से चलती हैं, वो अपने हिसाब से, हर कोई समझता है कि हम बेहतर हैं, लेकिन आवाम को कोई सहूलत नहीं। जितना मर्जी अच्छा सफ़र कर लो, एसी में कर लो, इकॉनमी में कर लो, कोई सहूलत नहीं। भाई देखो यार, सहूलियत फराम तो कर रहा है, लेकिन इतनी नहीं कर रहा जितनी ये हमसे किराया ले रहे हैं, इतनी नहीं हो रही भाई। अभी देखें ना, उकाड़ा का किराया 750 रुपये है, तो क्या सहूलत मिल रही है? ये पंखा भी चल रहा है, बस यही है। तो किराए थोड़े कम करने चाहिए। इतना ज़्यादा किराया लेने के बाद भी देखो ना, ये घाटे में जा रही है कहते हैं। इन्होंने किराया इतना बढ़ा दिया है, और गरीब बंदा कैसे बेचारा ये अफोर्ड करेगा, कैसे सफ़र करेगा। हुकूमत से हम इतना ही कह सकते हैं कि वो किराया थोड़ा कम करें, क्योंकि गरीब बंदा इतना अफोर्ड नहीं कर सकता। किराए बहुत बढ़ा दिए। देखें, अब 3 साल के बच्चे की आधी टिकट है, और जिनके चलो एक बच्चा होगा वो तो अफोर्ड कर लेगा, और जिनके 3-4 बच्चे हैं, 5 है, वो बेचारा क्या करेगा? इतनी महंगाई कर दी है और किराया भी इतना बढ़ा दिया। लिहाज तो यही है, अब बस गुजारा है, ठीक है, लेकिन मुसाफरों ने अपनी मंजिल मकसूद पर पहुंचना ही पहुंचना है। ख्वारी हो के जाएँ या सही हो के जाएँ, ठीक है जी। तो ऐसे ही है, ऐसे ही चलता रहना सारा कुछ। पहले बहुत अच्छा निज़ाम ਹੁੰਦਾ ਸੀ, 20-30 ਗੱਡੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸੀ, ਹੁਣ 2-4 ਗੱਡੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸਵੇਰ ਗੱਡੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਵੈਸੇ ਬਲੌਰ ਬੇੜਾ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀ ਰੇਲਵੇ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਇੰਜਣਾਂ ਦਾ ਲੋਹਾ ਸਿਆਲਕੋਟ ਜਾ ਕੇ ਲਾਇਆ, ਇੰਜਣ ਸਾਰੇ ਕਾਲੇ ਉਹ ਖਾ ਗਿਆ। ਮੀਆਂ ਤਾਲਾ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਇੰਜਣ ਖਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਬਸ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੈ। देखें जी, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से देखा जाए तो मियां नवाज शरीफ साहब का जो है ना वो दौर बेहतर था, ठीक है, उन्होंने काम किए हैं, ठीक है। और बाकी देखें, अल्लाह खैर करे, पाकिस्तान के हक़ में वो जो बेहतर हो वही हो नेक्स्ट भी आने वाले टाइम में। ना नवाज शरीफ फर्क है, ना इमरान फर्क है, तो ना ये फर्क है। अवाम पाल किया है, मैंने अवाम समझे तो जमात इस्लामी मौका दे सराज लाख मैंने सुन लाया ट्रक की बत्ती पिछे अवाम पाल किया है। आप लड़ लगे ने अवाम का नहीं सोचते है, जिसले अवाम का सोच रहे ने तो फिर अवाम ने तरक्की करनी है। इन्होंने अपनी कुर्सी पे कुर्सी तक है, कुर्सी आ गई को और भुल जाना ने कि अवाम की चीज़ है। 2022 जुलाई तक दिसंबर पाकिस्तान रेलवे का रेवेन्यू 28.263 अरब रुपए रहा, जबकि अखराजात 53 अरब रुपए के करीब। खसारे पर काबू पाने के लिए हुकूमत ने महकमा रेलवे को 21 बिलियन रुपयों से ज्यादा की सब्सिडी फराहम की। इतने बड़े नेटवर्क के बावजूद इतने बड़े खसारे का सबब क्या है? इसी पर बात करने के लिए हमने राब्ता किया है पाकिस्तान रेलवे के तर्जुमान बाबर अली रजा साहब से। सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सैलाब के 8 माह बाद भी रेलवे की जुज़वी बहाली सवालिया निशान है, इतनी ताख़ीर की वजह क्या है? देखें, आपके इल्म में होगा कि जब सैलाब आया तो उसके बाद रेलवे की जो तनसीबात थी उनको मुल्क भर में सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचा। अगर ये कहा जाए कि सैलाब से जो सबसे ज़्यादा मुतासरा है, सबसे बड़ा मुतासरा रेलवे है, तो इसमें कोई दूसरी राय ना होगी। हमें 525 अरब रुपए का नुकसान हुआ इस ज़मन में। तो इतना बड़ा नुकसान, उसकी बहाली जो है, उससे जो इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा है, उसकी बहाली में ज़ाहिरी बात है थोड़ा वक्त लगना था। इसके बावजूद, इतने बड़े के बावजूद हमने तमाम सेक्शंस पर आज के दिन तक जो है वो हमने सर्विस जो है वो बहाल कर ली। अच्छा बाबर साहब, रेलवे को खसारे से निकालने और मुनाफा बख्श बनाने का कोई प्लान ज़ेरे गौर है? देखें, इसमें सबसे पहले मैं अर्ज़ करता चलूँ कि हम ऑपरेशनल खसारे में नहीं हैं। अच्छा। जहाँ ये बताया जाता है कि रेलवे खसारे में है, वहाँ ये नहीं बताया जाता कि ये खसारा इस वजह से शो होता है कि हम 67% जो है वो सैलरीज़ और पेंशन की मद में दे रहे हैं। रेलवे मुल्क के उन चंद इदारों में है जो ख़ुद से कमाता भी है और सैलरीज़ और पेंशन भी देता है। सही। अच्छा, एक तो ये अर्ज़ हो गई कि हम ऑपरेशनल खसारे में नहीं हैं। दूसरा ये कि हम रेवेन्यू जनरेट करने के मज़ीद जो है मौक़े वो हम इसमें तलाश कर रहे हैं। उसमें सबसे हमारा जो अहम है वो रेलवे लैंड्स की कमर्शियल यूटिलाइजेशन है। इसके अलावा हम रेलवे स्टेशंस और ट्रेन्स और दीगर तनसीबात पर हम ब्रांडिंग की तरफ जा रहे हैं, जिससे हमें अच्छा खासा रेवेन्यू मुतवक्के है। इसके अलावा हम फाइबर ऑप्टिक पॉलिसी के ज़रिए और मज़ीद डिफरेंट एवेन्यूज़ हमारे नज़र में हैं,
ان کے ذریعے ہم انشاءاللہ ریونیو جنریٹ کریں گے، جن سے ہمارا جو آپ کو خسارہ نظر آتا ہے وہ کم ہوتا ہوا انشاءاللہ نظر آئے گا۔ چلیں انشاءاللہ ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ ریلوے کا جو خسارہ ہم سنتے ہیں اس میں کمی آئے، ریلوے بھی ایک ترقی یافتہ ایک سروس بنے۔ اچھا بابر صاحب یہ بتائے گا کہ ML1 کی اپ گریڈیشن سے بہت امیدیں وابستہ ہیں، منصوبے کی تازہ ترین پیش رفت کیا ہے؟ دیکھیں ML1 جو ہے اس کی فی الحال ہم کاسٹ کٹنگ کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ پورا اوورال اکانومی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم اس کو کتنا آگے تک لے کے جائیں گے۔ تو فی الحال ہماری کوشش یہ ہے کہ اس حد تک اس منصوبے پر عمل پیرا ہوں کہ اس جو اکانومی ہے اس پہ کم سے کم ہم اس پہ افیکٹ کر سکیں۔ تو ابھی تو زیر غور ہیں مختلف آپشنز، تو جیسے ہی اس پہ فائنلائزیشن ہوتی ہے تو ہم انشاءاللہ اس پہ گو ہیڈ دیں گے۔ اچھا مسافر ٹرینز کو مکمل AC کرنے کا پلان بھی تھا، یہ کب تک ممکن ہے؟ دیکھیں مختلف کیٹیگریز ہیں سفر کرنے والوں کی۔ کچھ لوگ جو ہیں وہ اکانومی میں سفر کرنا پسند کرتے ہیں، یا دوسرے لفظوں میں آپ کہہ لیں کہ وہ اتنا خرچ کر سکتے ہیں کہ اکانومی ان کے لیے مناسب ہے۔ تو اگر ساری AC کر دی جائیں گی تو جو عام آدمی ہے اس کے لیے یہ اپروچیبل نہیں ہوگی، ریلوے آؤٹ آف ریچ ہو سکتی ہے۔ تو ہم نے تمام مسافروں کی کیٹیگریز کا لحاظ رکھنا ہے۔ تمام کیٹیگریز جو ہیں وہ AC نہیں کی جا سکتی فی الحال، اس کو آہستہ آہستہ ہم اپ گریڈ کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ جو گرین لائن ہے ہم نے ایک اچھی سروس دی ہے، بالکل اس کی طرز پر ہم دوسری ٹرینیں بھی اپ گریڈ کر رہے ہیں جن میں زیادہ سے زیادہ سہولیات بھی ہوں گی اور زیادہ ڈبے جو ہیں ہم AC کے بھی لگائیں گے، لیکن ود ٹائم یہ سارا کچھ ہوگا۔ اچھا بابر صاحب فریٹ ٹرینز کے ذریعے ریلوے کے خسارے کو کم کیا جا سکتا ہے، اس جانب سنجیدہ قدم اٹھانے میں کیا چیز حائل ہے؟ دیکھیں ہم پوری سنجیدگی سے اس میں فریٹ ٹرینوں کو کر رہے ہیں کام۔ اس پہ ہماری پر ڈے 3 سے 4 ٹرینیں فریٹ جو ہیں وہ چل رہی ہیں۔ تو اس میں ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آرڈرز کتنے ہیں، جتنے زیادہ آرڈرز ہو جائیں گے، پلیس ہو جائیں گے، ہم اتنی زیادہ اس پہ آپریشن ہمارا زیادہ ہوگا۔ تو ہماری ہر وقت اس چیز پہ نظر ہے کہ جس ایونیو سے بھی ہم جنریشن ہو سکے ہم اس کو کریں۔ تو کوشش یہی ہے کہ آنے والے وقت میں اس میں مزید بہتری آئے۔ اچھا بالکل۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ ملک میں صرف 5 سے 10% مسافر جو ہیں وہ ریل سے سفر کو ترجیح دے رہے ہیں اس وقت۔ ریل کے سفر کو باسہولت اور عوام میں مقبول بنانے کے لیے محکمہ کیا کر رہا ہے؟ دیکھیں یہ میں تھوڑا سا اس سے اختلاف کروں گا، 5 سے 10 کی فگر نہیں ہے۔ اگر آج بھی ریلوے اسٹیشنز پر آپ جائیں تو آپ کو اچھی خاصی تعداد نظر آئے گی مسافروں کی جو ریلوے کو ترجیح دیتے ہیں۔ اچھا۔ کیونکہ یہ محفوظ ترین سفر ہے پاکستان کا، اور کوئی موڈ آف ٹرانسپورٹیشن جو ہے اس سے زیادہ محفوظ نہیں ہے۔ پھر یہ کہ اگر آپ کرائے کمپیئر کریں تو ہمارے کرائے بھی دوسرے جو موڈز ہیں ان سے بہت حد تک کم ہیں۔ تو میرے خیال میں مسافر ریلوے کو ترجیح دیتے ہیں۔ البتہ یہ ہے کہ اس میں مزید کتنی بہتری آ سکتی ہے تو وہ آپ کے علم میں ہے کہ جیسے جیسے ریلوے کے جو پروگرامز جو آپ کو میں نے عرض کی ہے وہ ہمارے بحال ہوتے جائیں گے، جیسے جیسے ہم برانڈنگ کریں تو آہستہ آہستہ ہمارا ریونیو بھی جنریٹ ہوگا اور چیزیں بھی بہتر ہوں۔ اچھا بابر صاحب قیام پاکستان کے بعد سے اب تک کی اگر ہم بات کریں تو 1000 کلومیٹر پٹری جو ہے وہ غائب اور کئی سو سٹاپ بھی ختم کر دیے گئے ہیں۔ اسے کیا محکمے کی نااہلی نہیں کہا جائے گا؟ اور ساتھ میں یہ بھی بتائیے گا کہ اس زبوں حالی کا ذمہ دار کون ہے؟ دیکھیں جو سٹاپیجز ہیں وہ وہاں پہ رہتے ہیں جہاں پہ ریونیو جنریشن ہماری ایک مقررہ حد تک ہو۔ اگر اس حد سے کم ہمیں ریونیو آئے گا تو ہم وہاں پہ سٹاپ ختم کر دیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہمیں فیل ہوتا ہے کہ ہمارا ریونیو ایک جگہ سے زیادہ آ رہا ہے تو وہاں پہ ہم جہاں ایکسپیکٹ ہوتا ہے کہ یہاں سے زیادہ آ سکتا ہے تو وہاں پہ ہم سٹاپ دے دیتے ہیں۔ جہاں سے اس مقررہ حد سے کم ہو جاتا ہے تو وہاں پہ سٹاپیجز ہم ختم کر دیتے ہیں، کیونکہ ریلوے نے ریونیو جنریٹ کرنا ہے تو ریلوے چلے گی۔ دوسرا یہ کہ جہاں آپ کہہ رہے ہیں پٹری کم ہوئی ہے تو وہاں پہ ٹرینیں اس لیے جانا کم ہو گئی ہیں کہ لوگوں نے وہاں پہ سفر اس مقررہ حد سے کم ہمیں ریونیو دے رہے ہیں جو کہ مقررہ حد ہماری ریونیو جنریشن کی ہے۔ ٹھیک ہے، بابر علی رضا صاحب ترجمان ریلوے ہمارے ساتھ موجود تھے، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ناظرین، پاکستانیوں کی بڑی تعداد ریل کے سفر سے کتراتی کیوں ہیں؟ وہ کیا خوف ہے جو دوران سفر ٹرین کے ہر مسافر کو لاحق رہتا ہے؟ آپ کو بتائیں گے ایک بریک کے بعد۔
वेलकम बैक नाजरीन। कम तरीन सहूलतें ट्रेनों की, आमद और रवानगी में ताखीर और दौरान सफ़र ट्रेन हादसात का खौफ अवाम में रेल की गैर मकबूलियत की वजह है। 2019 138 ट्रेन हादसात के साथ बदतरीन साल साबित हुआ, जबकि इस दौरान हमसे कई गुना बड़े इंडियन रेलवे को 59 हादसा पेश आए। पाकिस्तान रेलवे के सरप्लस महकमा 67,000 मुलाजमीन और 1300 अफसरान पर मुश्तमिल अमले को भी महकमे की बदहाली का किसी न किसी हद तक जिम्मेदार करार दिया जाता रहा है। इस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये बताते चलें कि अपने बजट का 67% तनख्वाहों और पेंशन पर खर्च करने वाले महकमे के मुलाजमीन हर माह तनख्वाहों में ताखीर से परेशान है। और तनख्वाहों में ताखीर का सबब क्या है और मुलाजमीन पर लगने वाले काम चोरी और करप्शन के इल्जामात में कितनी सदाकत है, इस पर हमने बात की है रेलवे प्रेम यूनियन लाहौर डिवीजन के रहनुमा से। पंजाब गवर्नमेंट के हर मुलाजमिन को तनख्वाह या वफाकी मुलाजमिन को बर वक्त मिलती हैं। इवन हमारे सियासतदान, हमारे MNAs, हमारे MPAs, हमारे सेनेटर्स, हमारे वज़रा, इनको तो एडवांस तनख्वाहें मिल जाती हैं। लेकिन कितने अफसोस की बात है, तनख्वाह नहीं मिलती तो रेलवे मुलाजिम को नहीं मिलती। उसको ये कह दिया जाता है कि जनाब आप कमाते कम हैं, ख़र्चे ज़्यादा हैं। भाई पहले तो मुझे आज तक ये नहीं समझ लग रही। मैं पूछना चाहूँगा अपने चेयरमैन रेलवे से कि जनाब ये तो बता दें कि पाकिस्तान रेलवे दफाई अदारा है, फलाई अदारा है या कमर्शल अदारा है? अगर तो ये कमर्शल अदारा है तो फिर हम इतने लोगों को फ्री वोचर्स क्यों देते हैं? आपने जो बात की है, एक मखसूस हेड है जिनमें से तमाम मुलाजमीन को तनख्वाहें मिलती हैं। हमारा ये मुतालबा है प्रेम यूनियन का कि उसी हेड के तहत रेलवे मुलाजमीन को तनख्वाहें भी दी जाए। हमारे साथ सुतेली माँ जैसा सलूक ना किया जाए। सब्र बड़ा मुश्किल चीज़ है। आप देखें कि रमज़ान में भी तनख्वाहें नहीं मिल रही थी, परेशान थे लोग। खुदा का शुक्र हुआ कि ईद से कबल लोगों की जद्दोजहद की वजह से इस मुल्क के वज़ीर ख़जाना को हमारे ऊपर तरस आया। उसके अंदर हमारे मिनिस्टर साहब ने बड़ी एफ़र्ट्स की, उन्होंने पैसे लेने की कोशिश की। हम भी शुरू दिन से सरापे एहतजाज थे। पूरे लाहौर डिवीजन समेत पूरे मुल्क के अंदर एहतजाज हो रहा था कि बेल आउट पैकेज मिले। अल्लाह का शुक्र है लोगों को तनख्वाहें मिल गई। लेकिन इसके बावजूद भी अभी सखा डिवीजन और कोटा डिवीजन के वो पेट्रोलर्स, उनको ये कह के तनख्वाह नहीं दी जा रही जी कि 3 महीने की उनकी तनख्वाह रहती है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो ये उनको तनख्वाह मिलनी चाहिए। अभी तक नहीं मिली, उनको मेन लाइन पर ट्रांसफ़र कर दिया गया। मुझे आप ये बताएं, अगर कश्मीर सेक्शन पर ट्रेन नहीं चल रही, वो जिम्मेदारी किसकी है? मैं तो कहता हूँ जी अल्लाह माफ़ फरमाए, अल्लाह ताला दुश्मन को भी रेलवे हॉस्पिटल में ना लेके जाए। इनके पास एक सफ़ेद रंग की गोली है। मैं तो हमेशा ये कहता हूँ दोस्तों से, वो आबे ज़मज़म से बनी हुई है। आप खुद चले जाएँ, जाके MS को पूछ लें, सिर दर्द कहेंगे तब भी वही गोली देगा। कि वो उसे कह दें जी मेरे पेट में दर्द है, तब भी वही गोली देगा। उसे कह दें मेरी बैकबोन की प्रॉब्लम, फिर वो गोली देगा। कोई इलाज की सहूलत नहीं है, कतन किसी किस्म की इलाज की सहूलत नहीं है यहाँ पर। अल्लाह माफ़ फरमाए, रेलवे मुलाजमिन का कोई हाल नहीं है। LDA एक डिपार्टमेंट है छोटा सा, उसके स्वीपर को भी तकलीफ़ हो जाए, वो भी लाहौर के जिस मर्जी हॉस्पिटल में जाता है, वासा का, LDA का, PHA का, उनका बेहतरीन इलाज होता है। रेलवे के मुलाजमीन को तो इस मुल्क के अंदर छूत समझा जाता है, कोई सहूलत नहीं है। पहले हमें एक सहूलत छोटी सी होती थी कि हमारे मुलाजमीन रेफरेंस लेटर लेके चले जाते थे, CMH वहाँ इलाज कराते थे, बाद में थोड़ी बहुत उनको पैसे मिल जाते थे। वो भी सहूलत ख़त्म हो चुकी है। ये भूत मंगला है रेलवे कैरन हॉस्पिटल। यहाँ पर यहाँ के जो CMO है, आप अंदाज़ा लगाएं, जो चीफ मेडिकल ऑफिसर हैं, वो आँखों के डॉक्टर हैं। तो कैसे मुमकिन है? वहाँ तो कोई प्रोफेशनल डॉक्टर होना चाहिए। वो एक आँखों के डॉक्टर को उन्होंने CMO लगाया हुआ है। अल्लाह मालिक है रेलवे के जी। कोई कतन किसी किस्म की सहूलत रेलवे के कैरन हॉस्पिटल में नहीं है। मैं 1984 में भर्ती हुआ था रेलवे में, 1,40,000 मुलाजिम थे। आज जब एक जनरल मैनेजर था रेलवे के अंदर, एक जो था जी चीफ इंजीनियर ओपन लाइन हुआ करता था, एक चीफ मैकेनिकल इंजीनियर हुआ करता था, और आज रेलवे में 66,000 मुलाजमीन हैं। रेलवे में 3 जनरल मैनेजर हैं 21वें ग्रेड के, रेलवे में 3 एडिशनल जनरल मैनेजर हैं 21वें ग्रेड के। नीचे अफसरान की फौज ज़फ़रे मौज है। हमारे तो यहाँ पर अगर स्केल गिने तो हम थक जाएंगे, इतने अफसर हमारी रेलवे के अंदर, फिर भी ये कहते हैं रेलवे के अफसर कम है। जबकि मुलाजमीन, मैंने बताया, जब 1,40,000 थे तो एक GM था। आज आप देख लें कि हमारे मुलाजमीन सिर्फ 66,000 हैं, तो जनरल मेजर 3 हैं, 3 एडिशनल जनरल मेजर हैं।
तो जनाब ये रेलवे की ब्यूरोक्रेसी ज़िम्मेदार है, रेल का मजदूर ज़िम्मेदार नहीं। पाकिस्तान रेलवे का एक हल है कि पाकिस्तान रेलवे को चाहिए ओपन मार्केट में, इंटरनेशनल मार्केट में बिडिंग करें। हमारा ट्रैक 24 घंटे में से 23 घंटे खाली पड़ा है। ओपन एक्सेस पॉलिसी के तहत यहाँ पर ट्रेन को, निज़ाम को चलाया जाए। आप देखें कि एयरपोर्ट के ऊपर पूरे दुनिया से जहाज़ आते हैं, फ्यूल लेते हैं, फ्यूल होने के बाद वहाँ से टैक्स पे करते हैं और उड़ के चले जाते हैं सिविल एविएशन को टैक्स देकर। इसी तरह हमारे ट्रैक पर बाहर से इन्वेस्टर्स को बुलाएं, वो आएँ यहाँ पर, वो अपनी ट्रेनें चलाएं, अपने लोकोमोटिव लेके आएँ, अपनी कोचेज़ लेके आएँ। उससे क्या होगा, आवाम को रोज़गार मिलेगा, हेल्दी कंपटीशन होगा। अगर हमारी बिजनेस ट्रेन चल रही है या शालीमार चल रही है, उसके मुकाबले पे जब वो अपनी ट्रेन को चलाएंगे, जब उनकी अपनी ट्रेन चलेगी तो हेल्दी कंपटीशन होगा, हेल्दी कंपटीशन होगा तो बिज़नेस बढ़ जाएगा। अब आप देखें, एक आधी बस की कंपनी हुआ करती लाहौर में, आज आप देखें कि 20 तरह की कंपनी है। कोई लाहौर से कोटा कह रहा है जी हम बेड पर लेके जाएंगे, कोई कह रहा है जी हमारे उसमें बाथरूम की सूरत भी बस के अंदर मौजूद है। तो जिद्दत पैदा होती है। इसी तरह से इनको चाहिए प्रोफेशनलिज्म को अपनाएं। हमारे रेलवे के ब्यूरोक्रेट ये जो है ना, सिर्फ दफ्तरों में बैठ जाना और मीटिंग खेलना, इससे रेलवे बेहतर नहीं होगी। कराची पाकिस्तान का तिजारती हब, 7 अजला पर मुश्तमिल 1.5 करोड़ से ज़्यादा आबादी वाले शहर में सर्कुलर रेलवे की बुनियाद 1969 में रखी गई। सस्ती और सहल तरीन लोकल ट्रेन सर्विस को आवाम में बेहद पजीराई मिली और पहले ही साल 5 लाख रुपए का मुनाफा हुआ। 70 की दिहाई के दौरान शहर में 104 लोकल ट्रेनें ऑपरेशनल रहीं, लेकिन ट्रांसपोर्ट माफिया की मिली भगत से KCR का भट्टा ही बिठा दिया गया। इस हवाले से देखिए वकीलुर रहमान की रिपोर्ट। कराची सर्कुलर रेलवे, यहाँ कराची के शहरियों का देरीना मुतालबा भी, यहाँ के ट्रैफिक मसाइल का हल भी। ये मंसूबा इस वक्त किस स्टेज पर है, इसके क्या मसाइल है, क्या रुकावट है और यहाँ की ट्रैक की क्या सूरत हाल है, आइए आपको दिखाते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं गिलानी स्टेशन, सर्कुलर रेलवे का एक बड़ा स्टेशन, 13D में वाक़ स्टेशन की इस वक्त क्या कैफियत है, क्या सूरत हाल है, आइए अंदर देखते हैं। ये टिकट घर है इस स्टेशन का, लेकिन आप अगर इसका जायज़ा लें तो ये कहीं से भी स्टेशन का टिकट घर नज़र नहीं आ रहा, बल्कि ये इसको हिरोंचियों ने अपना एक अड्डा बनाया हुआ है। यहाँ नशा करते हैं और यहाँ कचरा कुंडी भी बनी हुई है और ये पूरे 2-3 कमरे हैं। इसमें न खिड़कियाँ हैं न पंखे हैं और इसमें कहीं से भी ये नज़र नहीं आ रहा कि ये कोई टिकट घर है, बल्कि ये किसी हिरोंचियों का एक अड्डे का मंजर पेश कर रहा है। सर ये देखें सर्कुलर रेलवे, यहाँ पे गुलशन इकबाल 13D1 का इलाका, ये गिलानी स्टेशन लगता है। यहाँ पे हम 25 साल से सुन रहे हैं कि ट्रेन चलेगी 25 साल से लेकर आज तक अभी तक कोई नामो निशान नहीं है। अगर ये चल जाए तो आवाम को काफ़ी सहूलत होगी। सर्कुलर रेलवे काफ़ी सालों से हम सुन रहे हैं, लेकिन इसका कोई हल ही नहीं है। सही है, ट्रैफिक का आप हाल देखें, हर चीज़, मगर बहुत ही बुरा हाल है। ग्राउंड का हाल देखें आप, कचरा कुंडी बनाया हुआ है, ना कोई खेल सकता है ना कुछ। और ये अगर तरक्की वाला काम हो जाएगा लोगों के लिए आसानी हो जाएगी। इस वक्त हम मौजूद हैं, ये सर सैयद यूनिवर्सिटी से नीपा आने वाला रेलवे ट्रैक है, जिस पे अगर ये कैमरामैन सलमान आपको दिखा सकें कि इस गैर फ़ाल स्टेशन को लोगों ने कब्ज़ा करके अपना रिहाइशगाह में तब्दील कर लिया है। और यहाँ अगर ये ट्रैक की आप हालत देखें, कहीं पर ट्रैक बिल्कुल गायब है, झाड़ियाँ उस पर बनी हुई है, कहीं पर दब गया है, कहीं पर उसको काट कर हिरोंची ले गए। ये आगे तक पूरा ट्रैक इसी तरह जो है वो उसकी यही मंजरनामा पेश कर रहा है। रेल माल बर्दारी का सस्ता तरीन नेटवर्क समझा जाता है। एक माल बर्दार ट्रेन कम वक्त, कम खर्च और कम तरीन कार्बन डाइऑक्साइड के अखराज के साथ 40 ट्रकों के बराबर सामान कम तरीन वक्त में मुंतकिल करने की सलाहियत रखती है। 1960 से 1970 तक मुल्क में 73% सामान की तरसील फ्रेट ट्रेनों के जरिए ही की जाती थी। आज क्या हालात हैं, देखिए लाहौर से आजम की रिपोर्ट। ये खस्ता हाल और जंग-आलूद माल बरदार गाड़ियां पाकिस्तान की मईशत और पाकिस्तान रेलवेज की तबाही का मुंह बोलता सबूत है। दुनिया भर में ट्रेन की आमदन
टिकट बेचने से और उससे भी ज्यादा फ्रेट ट्रेनों के जरिए होती है। लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान में कार्गो की तरसील यानी सामान को एक शहर से दूसरे शहर तक ले जाने के लिए सबसे ज्यादा सड़कों और बड़े ट्रक्स का इस्तेमाल किया जाता है, जो मुसलसल बोझ बनता जा रहा है और ये बोझ पाकिस्तानी मईशत के लिए बर्दाश्त करना इंतहाई मुश्किल हो चुका है। पाकिस्तान की फ्रेट ट्रेन का कार्गो की तरसील में सिर्फ 2% का हिस्सा है, जबकि ML1 मंसूबे का बुनियादी मकसद ये था कि पाकिस्तान की कार्गो की तरसील को 20% तक फ्रेट ट्रेन के जरिए बढ़ाया जा सके। दुनिया भर में तकरीबन 10,000 मिलियन टन कार्गो का हर साल फ्रेट ट्रेन के जरिए एक शहर से दूसरे शहर और एक मुल्क से दूसरे मुल्क तरसील का निज़ाम मौजूद है। इसमें सबसे बड़ा हिस्सा चीन और अमेरिका का है। अगर पाकिस्तान भी अपने फ्रेट ट्रेन के निज़ाम को बेहतर कर ले तो इससे न सिर्फ पाकिस्तान रेलवे की ट्रेन चल पड़ेगी, बल्कि पाकिस्तानी मईशत की ट्रेन भी पटरी पर आ जाएगी और फराटे भी भरेगी। जी, खसारे में डूबे पाकिस्तान रेलवे की आखिरी उम्मीद क्या है? कौमी खजाना निगलने वाले इस सफेद हाथी से जान कैसे छूटेगी? इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहती हूँ। नाज़रीन, ML1 की अपग्रेडेशन कराची तक पिशावर 1872 किलोमीटर तवील मेन लाइन की अपग्रेडेशन का हर हुकूमत ने मसला सुनाया। 160 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलने वाली ट्रेन को जल्द दौड़ाने का वादा किया, मगर सिवाय इसके कि 6 अरब डॉलर के मंसूबे की लागत 8 से 10 अरब डॉलर पर पहुंच गई और कुछ ना हो सका। ML1 क्या है और इसकी अपग्रेडेशन पाकिस्तान रेलवे की तकदीर कैसे बदलेगी? इस पर हमने बात की है पाकिस्तान रेलवे के साबिक GM और ML1 प्रोजेक्ट के साबिक टीम लीडर अशफाक कटक साहब से। आपको दिखाते हैं। ML1 मेरी नज़र में पाकिस्तान के लिए एक बहुत अहम प्रोजेक्ट है। इसको मेन लाइन 1 कहते हैं। ये कराची से पेशावर तक और टेक्सला से हवेलियाँ तक ये तकरीबन 1872 किलोमीटर का एक वो है। और ये चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर जिसको हम CPEC कहते हैं, उसका ये एक स्ट्रेटिजिक प्रोजेक्ट डिक्लेयर्ड है। और ये हमने चाइना के साथ मिल के इसको पूरी रेलवे लाइन को अपग्रेड करना था। तो ML1 तो ये है। और मेरी नज़र में पाकिस्तान की इकॉनमी अगर इसने ग्रो करना है 6 और 7 और 8% अलग करे, 10% पे भी ग्रो करे, ये बग़ैर इस रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर से और बग़ैर रेलवे की ML1 की डेवलपमेंट से ये ग्रोथ रेट मुमकिन नहीं होगा। क्योंकि रेलवे एक ऐसे हमारे पास अल्लाह ने हमें ये दिया हुआ इस खूबसूरत नेशनल कॉरिडोर में एक फ्रेमवर्क है जिसको हमें अपग्रेड करना चाहिए। और बहुत इस पे हालात ख़राब हो गए। बदकिस्मती ये है कि ये 2015 में स्टार्ट हुआ, इसकी फिजिबिलिटी हुई, इसका प्रिलिमिनरी डिज़ाइन हमने किया, हर चीज़ 2018 में तकरीबन ये तैयार था इसको ग्राउंड हिट करने के लिए। अफसोस की बात यह है कि 8 साल हो गए हैं और ये प्रोजेक्ट अब तक स्टार्ट नहीं हुआ। तो 8 साल में जो प्रोजेक्ट नहीं स्टार्ट हुआ, ये अगर हुआ होता आज इसका फ़ेज़ 1 कंप्लीट होता और कौम को इसके फ़ायदे नज़र आ रहे होते और 160 किलोमीटर फी घंटे पे आपको गाड़ी नज़र आती और फ्रेट मूवमेंट बहुत तेज़ हो जाती और इस फ़ेज़ 2 इसके साथ साथ तकरीबन शुरू होता और ख़त्म भी हो गया होता। देखें, मैंने कहा 8 साल हो गए लेकिन किस्मत हमारी फिर भी अच्छी है, हम अच्छा मुल्क हैं। तो ये समरकंद में एक SCO कॉन्फ्रेंस हुई थी, वहाँ प्रेसिडेंट शी आए थे। उन्होंने हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब को, शहबाज शरीफ साहब को कहा कि जी हम अभी भी विलिंग हैं कि इसके ML1 को आप शुरू करें और इसको जल्दी करें। तो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग, हमारी मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज़, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस अब लगे हुए हैं कि चाइना के साथ दोबारा इसको रिस्टोर करें, रिवाइव करें और इसको स्टार्ट करें। मैंने जैसे बताया ये ML1 प्रोजेक्ट CPEC में वाहिद स्ट्रेटिजिक प्रोजेक्ट है और मैं चूँकि रेलवे का आदमी हूँ, मैं तो इसकी वो करूँगा, लेकिन ये एक प्रोजेक्ट ऐसे है जो चाइनीज़ को भी पता है, एशियन डेवलपमेंट बैंक को भी पता है, वर्ल्ड बैंक को भी पता है। ये 10-12 साल में अपने तमाम पैसे जो कर्जा हम लेंगे, जिस हम नेगोशिएट करेंगे रेट का, तो मेरा व्यू ये है कि 10-12 साल में जो फ्री टाइम हमें ले उसके अंदर ये तमाम पैसे वापस हो जाएंगे। देखिए, हमारा किस्मत अच्छी है कि कराची में हमारे पोर्ट्स हैं, गवादर पोर्ट है, उसका हिंटरलैंड, फिर ये पंजाब है और सिंध है और KP है और KP पेशावर पे ख़त्म, लंडी कोतल पे नहीं ख़त्म होता। पूरा अफ़गानिस्तान हमारी ML1 पे डिपेंडेंट होगा जब इंशाल्लाह ये बन जाएगा। तो ये जब इसकी स्पीड ट्रेनों की 160 हो जाएगी, अभी 110 है और ट्रैक का बुरा हाल है तो वो 110 स्पीड भी नहीं बनती। और इसी तरह इसका जो एक्सल लोड है 25 पे चले जाएगा
तो इसकी कैपेसिटी 32 ट्रेन पर डे लाइन कैपेसिटी इसको हम कहते हैं, ये चली जाएगी 170 कैपेसिटी के ऊपर। और प्राइवेट सेक्टर को बहुत बड़ा मौका मिलेगा कि अपनी ट्रेनें लाए, अपनी बोगियां लाए, कोई तेल ले जाएगा, कोई सीमेंट ले जाएगा, कोई कोयला ले जाएगा, कोई कंटेनर ले जाएगा। तो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी इस मुल्क में आ जाएगी। माल बर्दारी की ट्रेन मूव करेंगी, सामान मूव करेगा अफ़गानिस्तान को, सेंट्रल एशिया को, चाइना की बहुत बड़ी ट्रैफिक होगी इंशाल्लाह। लेकिन तमाम फ़ायदा इसमें पाकिस्तान का है। ये बाकी मुल्कों का फ़ायदा होगा डेफिनेटली, लेकिन फ़ायदा पाकिस्तान का है। और ये फाइनेंशियली वाइबल प्रोजेक्ट है, इकनॉमिकली तो है ही। आजकल मुझे 45-47 अरब रुपए का खसारा चल रहा है। ये कौम पे बोझ है, ये हमारी नेशनल इंटरेस्ट में है और ये पब्लिक इंटरेस्ट में है कि इस बोझ को ख़त्म किया जाए। अब कैसे किया जाए? इसमें सिर्फ 40 अरब रुपया जो है सालाना, वो सिर्फ पेंशन का खर्च है। तो एक ही तरीका है कि मेन लाइन 1 को कम से कम ये जो 1870 किलोमीटर का है, इसको अपग्रेड किया जाए। आपको एक मुल्क चाइना है जो कि हमारा बड़ा पुराना दोस्त है, वो टेक्निकल नो हाउ भी दे रहा है, आपको फाइनेंशियल हेल्प भी दे रहा है। तो हम उनके साथ नेगोशिएट करें, लेकिन फैसला हमने करना है कि किस किस्म का प्रोजेक्ट हमें चाहिए। और वो बन चुका है, उसका फ्रेमवर्क एग्रीमेंट साइन हो चुका है, सिर्फ उसको फॉलो करने की ज़रूरत है। इसमें तो ये बहुत बड़ा हिस्टोरिकल एक वजूहात हैं, लेकिन बेसिक वजह ये है कि ये फेडरल गवर्नमेंट का महकमा है। ये ना अथॉरिटी है, ना ये कॉर्पोरेट बॉडी है, ना ये कंपनी है, ये फेडरल गवर्नमेंट का महकमा है। तो मैं सिर्फ फेडरल गवर्नमेंट को ही इसमें इल्ज़ाम दूंगा कि जो पैसा रेलवे को चाहिए था अपनी मेंटेनेंस के लिए, अपने ट्रैक की मेंटेनेंस के लिए, अपनी लोकोमोटिव्स के मेंटेनेंस के लिए, अपनी ऑपरेशन के को रखने के लिए, सेफ्टी के लिए, वो पैसा हिस्टोरिकली पिछले 20-25 साल में नहीं मिला जो इनको चाहिए था। तो नेचुरली फिर जब आप इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं तो फिर इंफ्रास्ट्रक्चर भी बैठ जाता है और आपकी रोलिंग स्टॉक भी बैठ गया। तो अब हमारा 50-60% तकरीबन पुरानी चीज़ें, चाहे सिग्नलिंग सिस्टम है, चाहे ट्रैक है, चाहे लोकोमोटिव्स हैं, चाहे पैसेंजर कोचेज़ हैं, तमाम पुरानी हो चुकी हैं। मोस्ट ऑफ them 60-70% पुरानी है। नाज़रीन, रेलवे स्टेशन पर सामान ढोते कुली भी रेलवे के इन्हतात और मुसाफिरों की रोज़ बरोज़ कम होती तादाद से परेशान हैं। अरूज पर पहुंची महंगाई और कम होती आमदनी में गुजारा कैसे हो रहा है, भी से जान। काम शाम है नहीं है, महंगाई ज़्यादा है, आवाम परेशान है, गाड़ियाँ भी थोड़ी कम हो गई हैं। अच्छा, बिजनेस ट्रेन बंद है, 400-500 इला गुजारा ही होता है बस। मजदूरी जी कई हालात को ने पंजाब को गाड़ी अचन तो खाली हुई तो 200-300 मिलन तो पान को पहुँचन के दियो वो पोजीशन को ने अगे 1000-1200-1500 मिलती जाड़ी गुजर सफर हो तो हाँ 200-400 में पान खाऊँ को ना पहुँचन के खरायूँ 100 के 30% आगे उनको देने पड़ते हैं। ठेकेदार ना दे तो नंबर पर दे उतार देते हैं, टोकन उतार देते हैं। वो दिन में 500-600 मिलते हैं, उसमें 200 खर्चा हो जाता है, फिर 200 बचते हैं हमारे लिए। 200 में क्या होगा? बहुत तंगी हो गई है, महंगाई हो गई है, तकलीफ है लोगों को। गरीब ऐसे बैठे हुए हैं, पड़े हैं। 30-25 जनों में इनको 100 या 150 रुपये मिलता, क्या मिलता उसमें? कुछ भी नहीं है। बहुत मुश्किल गुजारे हो रहे हैं, 300-400-500 कमा रहे हैं, 1000 रुपये घर का खर्च है, बंदा कहाँ जाए? भाई जी काम दी हालात है कि कभी किसी ने कोई मजदूरी बन जाए, खर्चे तो पैसे बन जाते हैं, तो कभी वो अपने पल्ले जड़ा ना भुखा जिमें आंदा करो उमें वापस चला जाता है। कभी का 100-250 रुपया बन गया किसी को तो कभी नहीं बनया किसी को। हुकूमत सारा मुतालबा यही अगर साड़ी कोई इमदाद करे तो। गाड़ियाँ खाली आ रही हैं, खाली जा रही हैं और मुसाफिर बहुत कम मुसाफिर गाड़ियों में आते हैं। और कुलियों को किसी 150 कुली किसी को 5 कुलियों को या 4 कुलियों को रोज़ी मिल जाए नहीं तो सब कुली खाली है। हम ऐसे बड़े मजबूर, गुजारा नहीं होता हमारा। गाड़ियाँ चलेंगी, काम चलेगा तो फिर ही काम तो होएगा हमारा, मुसाफिर होएंगे। गाड़ियाँ खाली आ रही हैं, सवारी कोई नहीं है, कुछ भी नहीं है। बहुत मुश्किल का गुजर नहीं हो रही, बस ऐसे ही आते हैं स्टेशन से फिर तोड़ के चले जाते हैं। ट्रेनें कम हैं जो बंद की है, सैलाब में वो चली भी नहीं है पूरी ट्रेनें। 6-7 ट्रेनें बंद हैं, जो चल रही हैं उनके लिए भी सवारी नहीं है पूरी। किराए ज़्यादा हो गए हैं, सवारी कम है, महंगाई की वजह से ज़रूरत नहीं पूरे होते हैं, किधर सफ़र करें। रेलवे स्टेशन पर पार्किंग से लेकर फूड शॉप्स तक सबकी ज़माम ठेकेदारों के हाथ में है। ये ठेकेदार माफिया किस तरह आवाम और महकमे को लूट रहे हैं, आपको दिखाते हैं। हमारी टीम का लाहौर स्टेशन पर किया जाने वाला एक खुफिया ऑपरेशन।
ड्रॉप करने के लिए आए हैं, कार्ड नहीं चाहिए। कार्ड किस चीज का, कुछ लिखा भी नहीं हुआ। ये तो सफेद कार्ड है ना, इस पे कुछ लिखा हो कि रेलवे का या किसी और महकमे का। आप रेलवे के मुलाजिम हैं या ठेका है आपका? तो जिस कंपनी का ठेका कम से कम उसका नाम लिखा हो, कोई रेलवे का लिखा हो, किसी और कार्ड पे नहीं है। तो ये दिखाए नहीं कार्ड। ये पार्किंग कार, इसकी कितनी फीस है? इमरान एंटरप्राइज ठेका, ये इमरान कंपनी का है, इसकी कितनी फीस है? चाहे कोई ड्रॉप करने भी आए तो 30 रुपए देता है, लेकिन रेलवे में ड्रॉप करने के लिए अगर आना है वो तो फ्री है भाई। आप इस कार्ड के 30 रुपए लेते हैं, चले ठीक है, चले जी। साइकिल के 5 रुपए, मोटरसाइकिल 20 रुपए, रिक्शा 20 रुपए, कार 30 और वैगन का 30। वालेकुम जी सर, ये कार्ड लिया, कितने पैसे इस कार्ड के? कितना रेवेन्यू जनरेट कर लेते हैं 30 रुपए लेके? तो 30-40 हजार हो जाता है, इससे कम होता है। तो वो किसके खाते में जाते हैं पैसे? और जो 30 रुपए लेते हैं उसकी पर्ची देते हैं? कोई पर्ची नहीं है, लेकिन पैसा कौन लूट रहा है, किधर जा रहा है, किसी को नहीं पता। यूरोपीय यूनियन मुल्कों में रेल के सफर पर बढ़ता इन्हिसार भारत में गुज़श्ता साल के मुकाबले में 25% ज्यादा 29.2 अरब डॉलर का रेवेन्यू और चीन में फ्री ट्रेनों के जरिए माहाना 30 करोड़ टन से जायद सामान की तरसील आने वाले वक्त में रेल की अफादियत और इम्कानात का इजहार है। तेज रफ्तार तरक्की के इस दौर में अरबाब इख्तियार पर इस सवाल का जवाब लाजिम है कि रिकॉर्ड 46 अरब रुपए तक पहुंचा सालाना खसारा 101 मुसाफिर ट्रेनों और 2% फ्रीड बिजनेस के साथ हम कहां खड़े हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।